بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کے اقدامات مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن اور شہریوں کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل درآمد کے باعث ملک بھر میں کورونا مریضوں اور اموات کی تعداد میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق مثبت کورونا کیسز کی شرح کم ہو کر 4.96% ہو گئی ہے۔ مہلک وائرس نے ایک روز میں مزید 74 افراد کی جان لے لی۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر، 24 گھنٹے میں مزید 74 افراد وائرس کا شکار، جاں بحق افراد کی کل تعداد 20,151 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 62,061 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، 3,084 نئے کیسز سامنے آئے۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 4.96% رہی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے 639 ہسپتالوں میں کورونا کے 4,800 مریض زیر علاج ہیں۔ 24 گھنٹے میں 3,826 افراد کورونا کو شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ ملک بھر میں 536 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ملتان میں کورونا کے لیے مختص 67% وینٹیلیٹر اور 59% آکسیجن بیڈ زیر استعمال ہیں۔ لاہور میں 47، بہاولپور میں 40 وینٹیلیٹر اور پشاور میں 34% وینٹیلیٹر اور 41% آکسیجن بیڈ زیر استعمال ہیں۔ سوابی میں 45% آکسیجن بیڈ زیر استعمال ہیں۔ پنجاب میں کورونا کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 3.1% رہی۔ صرف 914 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں صرف 13 اضلاع میں کورونا کیسز کی شرح 8% سے زائد ہے۔ اگر عوام احتیاط نہیں کریں گے تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ آئندہ ہفتے مزید 6 ویکسینیشن مراکز شروع کر رہے ہیں۔ عوام ویکسین ضرور لگوائیں۔ رمضان کے آخری ہفتہ جو ہے اس میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا، اس کی وجہ سے تعداد مریضوں کی گئی ہے، جن کی 8% سے زیادہ ہے وہ راجن پور ہے، لیا، اکاڑا، پاک پٹن، ساہیوال، مظفر گڑھ، بہاڑی، خانیوال، چکوال، گجرات، ننکانہ صاحب، خوشاب، رحیم یار خان اور لودرا۔ ان ڈسٹرکٹس کے علاوہ یہاں انفیکٹیوٹی ریٹ 8 سے کم ہو چکی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤنز کا وہ چل رہا ہے اسی طریقے سے۔ ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی 8 بجے کے بعد بند ہے، یعنی سیٹرڈے سنڈے جو ہیں وہ ہر طرف جو ہیں وہ آبزرو ہو رہے ہیں ایز کلوز ڈیز۔ پبلک ٹرانسپورٹ 50% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے۔ انڈور جمز بھی بند ہیں، اور جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ اسٹرکٹ ایڈہیرنس کے ساتھ 24 مئی سے کھل رہا ہے۔ کووڈ پیشنٹس کا ٹوٹلی فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ اس وبا کے ساتھ ابھی تو ہم نے کچھ عرصے تک رہنا ہے، یہ کہیں گئی نہیں۔ 28 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے۔ اگلے ہفتے کے اندر ہم 6 نئے اور سینٹرز ایڈ کرنے لگے ہیں۔ ہم نے 1,40,000 روزانہ ویکسین کرنی ہے اس مہینے کے اندر۔ 37% 70 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے، 46% 60 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگ چکی ہے۔ اس کے بعد 37% 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو لگ چکی ہے، اور 19% 40 پلس پہ کیونکہ ابھی ہم نے شروع کی ہے، اور 30 پلس کے 5%۔ پاکستان نے مقامی سطح پر کورونا ویکسین تیار کر لی۔ سرائے کے مطابق چینی ساختہ کورونا ویکسین قومی ادارہ صحت میں تیار کی گئی ہے۔ پہلے فیز میں سنگل ڈوز کینسائنو کی 1,24,000 ڈوز تیار کی گئی ہیں۔ مقامی تیار کردہ کورونا ویکسین آئندہ ہفتے استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ پاکستان نے مقامی سطح پر کورونا ویکسین تیار کی ہے اور یہ آئندہ ہفتے استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ ذرائع اس ویکسین سے متعلق یہ بتا رہے ہیں کہ چینی ساختہ کورونا ویکسین قومی ادارہ صحت میں تیار کی گئی ہے۔ کراچی کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر ایکسپو میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں طویل قطاروں میں شہری ویکسین لگوا رہے ہیں۔ کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں مختلف علاقوں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث رش ہونے کے ساتھ ساتھ طویل قطاریں بھی لگ رہی ہیں۔ شہریوں کو ویکسین لگانے کے لیے 3 شفٹوں میں 24 گھنٹے عملہ مصروف ہے۔ ایک شفٹ میں ٹوٹل 12 سے 18 کاؤنٹر ہمارے فنکشننگ ہے، لیکن آج ابھی 12 تو کنٹینیو چل رہے ہیں، لیکن 6 کو بھی بٹھا رہا ہوں، 18 ٹوٹل کاؤنٹر چلیں گے ابھی۔ اسٹیشن ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ٹائم نہیں لگتا، لیکن رش اتنا آ جاتا ہے کہ
एक 2 मिनट तो लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रेंस से लेके यहाँ तक 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आराम से आ गए, यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। पहले तो काफ़ी डर रहे थे, लेकिन अब देखा कि सब लोग लगवा रहे हैं तो फिर हम लोगों ने भी कहा कि लगवा लेते हैं। कोई पैनिक नहीं है, आप आराम सुकून से अपनी बिल्कुल लाइन में बैठे और बेहतरीन हो रहा है। आपकी उम्र 40 साल हो या 65, वैक्सीनेशन के लिए आप शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो जाकर 3 मुख्तलिफ मराइल से गुजरकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज कराची। भारत में कोरोना से रोजाना लाखों मरीज और हजारों अमवात रिपोर्ट हो रही हैं, फिर भी वायरस का फैलाव रोकने के जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्काम गाफिल निकले। कोरोना में मुब्तला भारतीय सिफारती एहलकार की अहलिया इस्लामाबाद पहुंच गई। मंजू नामी खातून 12 भारतीय सिफारती एहलकारों के हमरा वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आई। पंजाब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के टेस्ट में मंजू में वायरस की तस्दीक हुई। सिफारती एहलकार की अहलिया मंजू को वापस भारत भेजने के बजाय भारतीय सिफारत खाने भेज दिया गया। सिफारत खाने में ही क्वारंटीना की हिदायत की गई। उधर सऊदी अरब ने कोरोना वबा के दौरान पहली बार गैर मुल्कियों को हज की मंजूरी दे दी। इस साल दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज के लिए खुशखबरी, इस साल दुनिया भर से 60,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदी अरब ने वैक्सीनेशन की शर्त के साथ हज करने की इजाजत दे दी। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हज के लिए नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान को हाजियों के कोटे से मुतालिक सऊदी हुकूमत जल्द आगाह करेगी। 60,000 के करीब हुज्जाज जो हैं वो इस साल हज कर सकेंगे। इसमें 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जो हैं वो हज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी इसके साथ मशरूत है कि कोरोना की वबा अगर खुदा न खास्ता ज्यादा हो जाती है तो फिर सऊदी हुकूमत उसके मुताबिक फैसला करेगी। तबारक व तआला के फजलो करम से ये दरवाजा अब खुलेगा और इसके बाद इंशाअल्लाह उम्रा भी जो है वो भी उम्मीद है खुल जाएगा। आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त के बाद पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से राब्ता करके चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरखास्त कर दी और मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तानियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है और डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान ने चीन के अलावा दीगर मुल्कों की वैक्सीन फौरी लगवाना मुश्किल करार दे दिया। WHO ने चीनी वैक्सीन मंजूर कर ली है। सऊदी वजारत सेहत चीनी वैक्सीन की भी रजिस्ट्रेशन करे। कराची में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हैं। न दिन को सुकून और न रात को आराम। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए आवाम जाए तो जाए कहाँ। गर्मी इतनी शदीद गर्मी पड़ी और ये लोगों को एहसास नहीं कि सुबह से बंद की हुई लाइट वाला परेशान करा हुआ है। अब ये है सब क्या करें, बाल बच्चे धारे बच्चे सब गर्मी के मारे पंखा जल रहा है रात को। रिहायशी इलाकों नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, शादमान टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, फेडरल बी एरिया, गुलशन गाजी, AB सिंह लाइन, जट लाइन, नाज़माबाद लाइन्स एरिया के साथ साथ तिजारती मराकज में भी बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है। चीजें हमारी खराब हो रही हैं, हवा से जो हमारी जो ठंडक में रहनी चाहिए चीजें वो खराब है। लाइट नहीं है। 2.5 घंटे यहाँ से अभी 9 बजे गई है, 11:30 बजे लाइट आएगी। उसके बाद भी कभी ऐसा कर देते कि 1 आधा घंटा आई फिर चली गई लाइट। गर्मियों में लोड शेडिंग पर काबू पाने के हवाले से हुकूमत ने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज कराची। सक्खर और गिरदोनवाह में तेज आंधी के बायस शिकारपुर रोड पर 11,000 kV के पोल गिर गए। सेप्को तर्जुमान के मुताबिक 130 फीडर स्ट्रिप कर गए थे, जिनमें से 80% बहाल कर दिए गए हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे ARY न्यूज के नुमाइंदे जहांजेब वसीर। जी बिल्कुल, सक्खर से गिरदोनवाह के इलाकों में गुज़िश्ता रात होने वाली तेज बारिश और आंधी के बायस सेप्को के 130 फीडर ट्रिप कर जिनकी बहाली के लिए सेप्को की जानिब से इकदाम किए गए हैं। अब तक 80% जो फीडर हैं वो बहाल हो चुके हैं। मैं सकते मौजूद हूँ शिकारपुर रोड पर। यहाँ पर गुज़िश्ता रात तेज आंधी के बायस बिजली के 2 पोल गिर चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ के जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर बिजली मुअत्तल की गई है। इसके खैरपुर में भी जो बिजली के पोल गिरे थे उनमें उनकी बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सक्खर में भी चंद ही घंटों के बाद इन बिजली के पोलों को उठाने के लिए टीमें रवाना कर दी जाएंगी, जो इंशाल्लाह चंद ही घंटों में यहाँ पर बिजली के पोल खड़े करके बिजली की सप्लाई फराहम कर देगी। जी
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे बनी गाला में होगा। सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इजलास में तरीन ग्रुप से हुई बातचीत और कौमी मामलात का जायज़ा भी लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे बनी गाला में होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पूरी कौम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ है। अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में आज कराची में शारा फैसल पर तारीखी फ़लस्तीन मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं ये कराची का तुरा इम्तियाज़ है कि वो उम्मत के दर्द को महसूस करता है। 4 बजे कराची में फ़लस्तीन मार्च हो रहा है। मार्च में मैं अपील करता हूँ कि इन फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए और उससे भी बढ़कर अल्लाह के रज़ा के लिए आप बड़े और छोटे, मर्द और औरत, बच्चे और बच्चियां सब मिलकर अपने खानदानों समेत इसमें शरीक हो। हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम हुकूमतों से भी ये मुतालिबा करते हैं कि आलमी इस्लाम कि तमाम इस्लामी ममालिक एक होकर इस जुल्म और जबर के मुकाबले के लिए अमली इक़दामात करें। जमात इस्लामी कराची के तहत फ़लस्तीन मार्च शारा फैसल पर किया जा रहा है। इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज कराची में फ़िलिस्तीन मार्च हो रहा है। शारा फैसल हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। मरकज़ी कैंप लगाया जा रहा है। पेडिस्ट्रेरियन ब्रिज को स्टेज का दर्जा दिया गया है। यहाँ से जमात इस्लामी के कायदीन इससे खिताब करेंगे। जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर सिराजुल हक कराची पहुँच चुके हैं जो इस रैली से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान और फ़िलिस्तीन के परचम लहरा दिए गए हैं और इसके साथ साथ रोड के ऊपर इसराइल के परचम भी बना दिए गए हैं जिससे गाड़ियां गुजर रही हैं। 4 बजे का वक्त दिया गया है जमात इस्लामी की जानिब से और कराची के शहरियों से अपील की गई है कि फ़िलिस्तीन से इजहार यकजहती के लिए और इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ वो इस मार्च में फैमिलीज़ के हमरा शरीक हों और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं ताकि दुनिया भर को बताया जा सके कि पाकिस्तान के लोग फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान ने चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि मुस्तफ़ा कमाल ने 2 मई को आमिर खान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात का मकसद आमिर खान की साख और पार्टी की मकबूलियत को मुतासर करना है। मुस्तफ़ा कमाल इल्ज़ामात पर 7 दिन में जवाब दें और 14 दिन के अंदर 5 करोड़ हर्जाना अदा करें। माफ़ी और हर्जाना अदा नहीं किया तो मज़ीद कानूनी चाराजोई की जाएगी। इमरान खान मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी बहरान में भी मौशी बदहाली वो नहीं थी जो इस हुकूमत ने करती है। इमरान खान को ना रोका गया तो वो घर घर मौशी बदहाली की आग लगा देंगे जिसे दहाइयों तक बुझाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा बैरून मुल्क से सख्त शराइत पर भारी कर्जे वसूल किए जिसे इमरान खान की काबीना करप्शन में उड़ा रही है। इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई नहीं, महंगाई माफिया की सरपरस्ती भी है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान गिरबान में झांकें, मुआशी जराइम पर कौम उन्हें माफ नहीं करेगी। लंदन में नवाज शरीफ पर हमला या हमले का ड्रामा। लंदन पुलिस ने बताया कि 4 अफराद गैर मुसल्लह थे। कोई हमला या तशद्दुद नहीं हुआ। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने हमला करार दे दिया था। लंदन में नवाज शरीफ पर हमला या ड्रामा। लीगी रहनुमा कहते हैं 4 मुश्तबा अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में घुसने की कोशिश की। रोकने पर कहा नवाज शरीफ से मिलने आए हैं। मुश्तबा हुलियों के बायस लीगी कारकुनान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। वाकया जुमेरात को पेश आया। वावेला जुमे को शुरू हुआ। लंदन पुलिस का कहना है 4 अफराद गैर मुसल्लह थे। कोई हमला हुआ ना ही तशद्दुद। लीगी रहनुमाओं ने पुलिस को हंगामी नंबर्स पर कॉल भी नहीं की। 24 घंटे बाद वीडियो सामने लाने से सवालात उठ गए। शहबाज शरीफ ने वाक़े को शर्मनाक तशवीशनाक करार दिया। मरियम बोली खुदा किसी को कमजर्फ और बुज़दिल दुश्मन ना दे। नवाज शरीफ से दौरान हिरासत खिलवाड़ करने वाले अब तक बाज नहीं आए।
میاں صاحب پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ برطانوی شہری میاں عمران کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے رائٹ ہینڈ ناصر بٹ کے ساتھ لین دین کا تنازع تھا۔ عدالت نے ناصر بٹ کا گھر نیلام کر کے پیسے ادا کرنے کا حکم دیا۔ بیلٹ آرڈر کی تعمیل کرانے گیا تھا۔ میاں صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہے ناصر بٹ، کورٹ نے ان کے آرڈر ایشو کیے کہ ان کا گھر سیل کر کے میرے پیسے پے کر دیے جائیں۔ 2-3 دفعہ بیلفس کے گھر گیا تعمیل کروانے کے لیے۔ انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ جی میاں صاحب پہ اٹیک ہو گیا، جبکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ قوم کو گمراہ نہ کریں، یہ میاں صاحب کا کوئی چکر نہیں ہے، صرف اور صرف ناصر بٹ کا ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم، سوالے کے ساتھ میں ہوں